السلام علیکم ناظرین، خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں ارشیا شیخ۔ نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم خبروں پر۔ سیلاب زدگان کی مدد کے لیے سیکریٹریٹ کے چوتھے بلاک میں وزیر تعلیم، آئی ٹی اور الیکٹرانکس نارا لوکیش کے ساتھ کئی معززین اور مختلف تنظیموں کے مینیجرز نے احتیاط دیے ہیں۔ وجے واڑہ میں واقع پریا انجینئرنگ پروجیکٹ سے شیو کمار نے 10 لاکھ روپے پرائیویٹ لمیٹڈ وصول کیے ہیں۔ پالمانیر کے بی سنیل 10 لاکھ روپے دیں گے۔ کاکی ناڈا کے ستیہ ایکسنز اینڈ ڈائناسٹک کے سربراہ ڈاکٹر کڈا وینکٹ رمنا کو 5 لاکھ روپے ملیں گے۔ منگل گیری میں مقیم وائی سی پی لیڈر اور اے پی سی او کے سابق چیئرمین چیلاپلی موہن راؤ کو 5 لاکھ روپے ملیں گے۔ بدیلو کے چروکوری روی کمار کو 5 لاکھ روپے ملیں گے۔ کڑپا کے تیراکنڈلا کرشنا ریڈی نے 5 لاکھ روپے جیتے۔ کورمپو کے وریش چندر دیو 5 لاکھ روپے دیں گے۔ وشاکھا پٹنم میں واقع آئی وی اوورسیز کنسلٹنسی کے سربراہ بی رام کمار نے 5 لاکھ روپے وصول کیے ہیں۔ کندکور کے سری لکشمی وینکٹیشور کی سربراہی کلوری کونڈیا کو 50,000 روپے ملیں گے۔ ایسوسی ایشن کے نمائندے 1.5 لاکھ روپے دیں گے۔ تروپتی کے سری گیتانجلی انگلش میڈیم اسکول کے مالک این مادھوی نے 2 لاکھ روپے کا عطیہ دیا۔ چنتل پوڑی کے مدی پوڑی سری نواسا راؤت چودھری کو 1,35,136 روپے ملیں گے۔ وجے واڑہ کے بورا رادھا کرشنا کو روپے سے نوازا گیا ہے۔ املا پورم کے میٹلا رامن بابو نے روپے جیتے ہیں۔ تروپتی کے سپتاگری گرامین بینک ریٹائر اسٹاف ویلفیئر سوسائٹی کے نمائندوں نے 1,16,700 روپے پیش کیے ہیں۔ حلقہ گرجالہ سے ونم وجے کی رہنمائی میں ڈی ڈی سی یوتھ ونائکا کی طرف سے لڈو ولیم کی گیت کو 55,000 روپے کا نقد انعام پیش کیا گیا۔ ننداموری بالا کرشنا فلم کے ہیرو وشواک سن اور اس کے علاوہ وزیر اعلیٰ چندر بابو نائیڈو کے ساتھ سیلاب زدگان کے علاقوں کا متاثرہ کیا گیا ہے۔ سی پی آئی کے ریاستی سیکریٹری رام کرشنا نے مطالبہ کیا ہے کہ حکمراں اور اپوزیشن جماعتوں کی طرف سے ایک دوسرے پر تنقید اور الزام تراشی کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ حکومت کو چاہیے کہ وہ بڈمیرو سیلاب کے مستقل حل کے ساتھ پانی کی نکاسی کے منصوبوں کے انتظام پر توجہ دے اور سیلاب زدگان کی مدد کے لیے اقدامات کرے۔ سی پی آئی کے رہنماؤں کے ایک گروپ نے بڈمیرو سے کولیرو تک ٹور پروگرام شروع کیا ہے۔ سی پی آئی لیڈروں کے ایک گروپ نے بڈمیرو سیلاب سے متاثرہ علاقوں کا معائنہ کیا۔ آل انڈیا کسان یونین کے جنرل سیکریٹری، سی پی آئی کے ریاستی اور اسسٹنٹ سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کے ممبران، ریاستی سیکریٹری کمیٹی ممبران، ایشوریا اور دوسرے عہدیداران موجود رہے۔ دوسرے سب سے پہلے انہوں نے ان جگہوں کا معائنہ کیا جہاں پر بڈمیرو سپلائی چینل پر ڈیم گرے ہوئے تھے۔ قائدین نے ریاستی آبی وسائل کے وزیر کی بات چیت کی اور ان کے ساتھ ایک معاہدہ طے پایا ہے۔ وزیر راما نائیڈو نے گڑھوں کی تدفین سے متعلق تفصیلات قائدین کو بتائی۔ وہیں قائدین نے تدفین کے سلسلے میں محکمہ آبی نکاسی کے عہدیداروں کی جانب سے منعقد کی گئی تصویر نمائش کا معائنہ کیا۔ مہاتما جیوتبا پھولے بی سی گروکلا ایجوکیشنل انسٹی ٹیوشن سوسائٹی کے سیکریٹری بڈگو سیدلو آئی ایف ایس نے اس بات پر زور دیا ہے کہ ہم بی سی گروکلا کے طلباء کو جدید ترین ٹیکنالوجی فراہم کرنے کے لیے سخت محنت کر رہے جو پوری دنیا میں دستیاب ہے۔ انہوں نے اسکول بوائز کو جمعرات تلنگانہ ترکپلی ایم جی پی حکومت کے تعاون سے ٹیک اوورس کے زیر اہتمام روبوٹکس اینڈ ڈرونز ٹیک 2024 ایکسپو کا افتتاح کیا ہے۔ اس موقع پر انہوں نے کہا ہے کہ یہ ایکسپو اسکول کے سطح سے طلباء میں تخلیقی صلاحیتوں کو بڑھانے اور انہیں ضروری تکنیکی مہارت فراہم کرنے کے مقصد سے منعقد کی گئی ہے۔ اس کے علاوہ طلباء روبوٹکس اور ڈرون کی اہمیت کو جانیں گے جو کل دنیا پر راج کریں گے اور آج کے طلباء کو کل کا سائنسدان بنانے کے مقصد سے طلباء کو فنی تعلیم فراہم کی گئی۔ سٹی میئر گڑھوال وجے لکشمی نے جمعرات کو جی ایچ ایم سی ہیڈ کوارٹر میں 5ویں اسٹینڈنگ کمیٹی کی میٹنگ کی صدارت کی۔ میئر نے کہا ہے کہ اراکین نے کمیٹی کے اجلاس میں 14 آئٹمز کو منظوری دی ہے۔ اس میٹنگ میں کمشنر امرپالی کٹا، اسٹینڈنگ کمیٹی کے ارکان بنالا گیتا پروین مدیراج اور فہد بن عبدالصمد، محمد قادر نمدی، ارچنا، محمد نذیر الدین، رفعت سلطانہ، غوث الدین محمد، مانی کویتا ریڈی، محمد راشد، فراج الدین، اپلاپتی، سری کانت سبیہا نے شرکت کی۔ بیگم اورلا رویندر ریڈی، چنتلا وجے شانتی، کنڈی سائجلا ایڈیشنل کمشنر اور چندرکانت ریڈی، یادگیری راؤ، سی پی سرینیواس اور اس کے علاوہ کئی عہدیداران نے شرکت کی تھی۔ مشورہ دیا گیا ہے کہ وہ ان لوگوں کی نشاندہی کرے جو
जो CSR के तरीक़ेकार से तालाबों की तरक्की और तालाबों में मच्छरों को रोकने के लिए ड्रोन के जरिए स्प्रे करने के लिए आगे आए हैं। कायमा कमेटी में मंजूर शुदा अशिया के BR पार्क और गेट पर मल्टी लेवल स्मार्ट कार और मोटरसाइकिलिंग पार्किंग की 10 साल तक तरक्की और देखभाल के लिए सबसे ज्यादा बोली देने वाली एसोसिएशन को लेटर ऑफ अवार्ड देने की तौसीक की गई है। CPI के रियासती सेक्रेटरी ने येचूरी की मौत पर ताज़ियत की है। CPI के तेलंगाना रियासती सेक्रेटरी कोटागुडम कानून साज असम्बली के रुकन कोनेनी संबासिवा राव ने CPI-M के कौमी जनरल सेक्रेटरी सीताराम येचूरी 72 साल के इंतकाल पर ताज़ियत का इजहार किया है। येचूरी जो एक माहिर तालीम है, उन्होंने CPM पार्टी में शमूलियत इख्तियार की और सरगर्म हो गए। उन्होंने कई अवामी और मजदूर तहरीकों की क़यादत की और मुल्क और मुल्क में खुसूसी पहचान हासिल की है। उन्होंने कहा है कि वो CPM और वाबस्ता अवामी अंजुमनों में बहुत से ओहदों पर फाइज है। సభ్యులుగా అంటే ఆ రోజుల్లో జ్యోతిబాస్ గారు, అలాగే హరికృష్ణ సింగ్, సూర్జిత్ గారు, అటువంటి హేమాహేములు ఉన్న టైంలోనే సీతారాం యేచూరి గారు, ప్రకాష్ కారత్ గారు వారిద్దరు కూడా యూత్ స్టూడెంట్స్గా ఉండి ఆ తక్కువ వయసులో సెక్రటేరియట్లో ఉండటం, అలాగే మార్క్సిస్ట్ పార్టీ తీసుకున్న అన్ని ప్రధాన నిర్ణయాలని ప్రభావితం చేయగలిగిన శక్తివంతమైన నాయకత్వం ఆనాటి నుంచి వారు చూపెట్టడం జరిగింది. అదే పద్ధతుల్లో నేపాల్ కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ అధికారంలోకి రావటంలో, రెండు కమ్యూనిస్ట్ పార్టీల మధ్య సయోధ్య కుదర్చడంలో యేచూరి గారి పాత్ర చాలా గణనీయమైనటువంటి పాత్ర. దాంతోపాటు ఆయన CPI, CPMకు సంబంధించి ఇటీవల కాలంలో మరింత సాన్నిహిత్యం పెరిగే విధంగా తన కృషిని ఆయన కొనసాగించడం జరిగింది. ఆయన ఎంత గొప్ప పార్లమెంటేరియన్ అంటే సోనియా గాంధీ గారు ఎటువంటి పొత్తు లేకపోయినా సరే కాంగ్రెస్ నుంచి ఒక రాజ్యసభ స్థానం సీతారాం యేచూరి గారు ఉంటే బాగుంటుందని ఆఫర్ కూడా చేయటం జరిగింది. అదే పద్ధతుల్లో సీతారాం యేచూరి గారు ఆయన గొప్ప ఆయన బ్యాక్గ్రౌండ్, సామాజిక బ్యాక్గ్రౌండ్ గొప్ప బ్యాక్గ్రౌండ్ అయినప్పటికీ కూడా చిన్నతనం నుంచి ఢిల్లీలోనే ఉండటం జరిగింది. తన సామాన్యుడిగా తన జీవితాన్ని ఒక సామాన్యమైన కమ్యూనిస్టుగా గడపడం జరిగింది. దాంతోపాటు సీతారాం యేచూరి గారు గొప్ప వక్త కూడా, అనేక గ్రంథాలు రాశారు. ఆ విధమైనటువంటి సీతారాం యేచూరి గారితో ఈ మధ్య మేము ఆంధ్రప్రదేశ్ ఎన్నికల సందర్భంలో కోనవరం ఆ ప్రాంతంలో నియోజకవర్గ इंजीनियर रशीद क्या करने जा रहे हैं और बीजेपी क्या चाहती है, इसका कोई मतलब नहीं। आगा रूहुल्ला मेहदी हल्का अराजुल खान साहब में पार्टी वर्कर्स कन्वेंशन में आगा सैयद रूहुल्ला मेहदी ने कहा कि इस बात का कोई मतलब नहीं है कि बीजेपी क्या करने जा रही है, बल्कि अहम बात तो ये है कि इंजीनियर रशीद क्या करने जा रहे हैं। आगा रूहुल्ला मेहदी ने नेशनल कॉन्फ्रेंस को उम्मीदवार सैफुद्दीन भट्ट की हिमायत के लिए कन्वेंशन में शिरकत की और लोगों से वोट देने और नेशनल कॉन्फ्रेंस को सपोर्ट करने की अपील की है। तो कहाँ पर आप उसको देखते हैं? यहाँ कोई बात नहीं, उसकी कोई यहाँ उसकी बात छोड़िए। ये नौजवान सारे मेरे साथ जुड़ गए हैं, कोई यहाँ मैटर नहीं करता। ऐसी हस्तियाँ यहाँ, ऐसे लोग एंट्री नहीं कर पाएंगे मेरे इलाके में। तो इस बार खान साहब के लोग बदलाव चाहते ही चाहते। हाँ, इन्होंने फैसला लिया है कि हमें सैफुद्दीन को रिलीज किया गया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस लोगों के सामने है, नेशनल कॉन्फ्रेंस का एजेंडा लोगों के सामने है, हमारा रास्ता लोगों के सामने है। हम बीजेपी के साथ लड़ रहे, बीजेपी के फैसलों के साथ लड़ रहे जो हम पे थोपा गया, जो फैसले हम पे थोपे गए। 370 के जरिए जो हमसे हमारी शिनाख्त, इज्जत, वकार, हुकूक हमसे छीने गए, हम उन हुकूक की वापसी के लिए, अपने तशक्कुस की वापसी के लिए जंग लड़ रहे हैं। अगर इंजीनियर रशीद या कोई भी इस रियासत में उसी शिद्दत से बीजेपी के खिलाफ लड़ना चाहता है, बीजेपी के इन फैसलों के खिलाफ, इस ऑनस्लॉट के खिलाफ जो हम पे हमले किए गए, जो हमसे हुकूक छीने गए, इन सब चीज़ों के खिलाफ लड़ना चाहता है और चाहता। हिंदुस्तानी मुसलमानों से अपील, वक्फ तरमीमी बिल 2024 की मुखालिफत। इस QR कोड को स्कैन करके JPC को अपना मुस्तरद जरूर भेजें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा कि आप तमाम को मालूम है कि बीजेपी हुकूमत ने पार्लियामेंट में वक्फ अमेंडमेंट बिल को पेश किया
اور ان کا مقصد یہ ہے کہ اس بل کو ایک ایکٹ بنا دیا جائے اور اس امینڈمنٹ ایکٹ کے ذریعے ہماری وقف کی ساری زمینیں، مسجدیں، قبرستان، عیدگاہ، مدرسے سب ہم سے چھین لیا جائے۔ پارلیمنٹ میں اس بل کی مخالفت کی گئی، اسی لیے اس بل کے لیے جے پی سی جوائنٹ پارلیمنٹری کمیٹی بنائی گئی۔ تو اب ہم جے پی سی کو اس بل کے تعلق سے اپنی رائے بھیج سکتے ہیں، اس بل کی مخالفت کر سکتے ہیں اور اس بل کے خلاف اپنا احتجاج درج کروا سکتے ہیں۔ اس کے لیے 15 دن تک کا ٹائم دیا گیا تھا۔ 13 سپٹمبر لاسٹ ڈیٹ ہے، یعنی کہ کل فرائیڈے آخری دن ہے اس بل کے خلاف اپنا احتجاج درج کروانے کے لیے۔ تو آپ کو بس کرنا یہ ہے کہ یہ جو آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ نے یہ جو QR کوڈ جاری کیا ہے اسے اسکین کر کے ای میل بھیجنا ہے جے پی سی کو کہ آپ اس بل کی مخالفت کرتے ہیں، آپ اس بل کے خلاف ہے۔ تو اس QR کوڈ کو اسکین کرنے کے لیے آپ صرف اپنے فون کا کیمرہ آن کر کے اس QR کوڈ پر لگائیں گے تو آپ کو ایک لنک دکھے گا، اس لنک پہ آپ کلک کریں گے تو جی میل کا آپشن آئے گا، جی میل پہ آپ کلک کریں گے تو آپ ڈائریکٹلی جو ہے جے پی سی کو ای میل بھیج سکتے ہیں۔ تمام بھارت کے مسلمانوں سے میری اپیل ہے کہ اس QR کوڈ کے ذریعے جے پی سی کو ای میل بھیج کر وقف امینڈمنٹ بل کی خلاف اپنا احتجاج درج کروائیے، اس بل کی مخالفت کریے، کیونکہ جو وقف کی جائیداد ہوتی ہے وہ اللہ کے نام پر کسی مذہبی یا خیراتی مقصد کے لیے وقف کی جاتی ہے۔ تو یہ ہمارا مذہبی فرائض ہے اور ہم پر یہ لازمی ہے کہ ہم اللہ کے نام پر وقف کی گئی جائیدادوں کو بچائیں اور ان کا تحفظ کریں۔ شکریہ، السلام علیکم۔ کانگریس لیڈر متین شریف نے کہا ہے کہ وقف ترمیمی بل 2024 کے خلاف 6 سیکنڈ کا عمل نہیں کریں گے تو 3 لاکھ مساجد، 10 لاکھ ایکڑ زمین اور کئی درگاہ تباہ ہو سکتے ہیں۔ دیکھیے انہوں نے مزید کیا کہا ہے۔ السلام علیکم۔ وقف امینڈمنٹ بل 2024 بی جے پی نے جو پارلیمنٹ میں پیش کیا ہے اس کی اہم وجہ یہ ہے کہ ہندوستان میں سب سے زیادہ زمین رکھنے والا اگر کوئی ڈپارٹمنٹ ہے تو وہ فارسٹ ڈپارٹمنٹ ہے۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر ریلوے ڈپارٹمنٹ ہے جس کے پاس سب سے زیادہ زمین ہے، اور اس کے بعد تیسرے نمبر پر سینٹرل گورنمنٹ کا جو ڈیفنس ہے ان کے پاس ہے، اور چوتھے نمبر پر ہندوستان میں سب سے زیادہ زمین ہے تو وہ وقف بورڈ کے پاس ہے۔ تو بی جے پی چاہتی ہے کہ اس چوتھے نمبر پہ جو سب سے زیادہ زمیندار ہے وقف بورڈ ڈپارٹمنٹ آرگنائزیشن، تو اس کو چوتھے نمبر سے 40ویں نمبر پر لا دے۔ اس وجہ سے انہوں نے ایک کالا قانون بناتے ہوئے ایک بل پارلیمنٹ میں پیش کیا جس کو بہت ہی قابلیت کے ساتھ راہل گاندھی جی جو پارلیمنٹ کے لیڈر آف اپوزیشن ہیں انہوں نے اس بل کے بارے میں کہا کہ اس کو جوائنٹ پارلیمنٹ کمیٹی یعنی جے پی سی کو بھیجا جائے اور وہاں پہ وہ لوگوں کی رائے لیں گے، اس کے بعد ہم اس بل کے اوپر پارلیمنٹ میں ڈسکشن کریں گے۔ تو جیسے ہی اس بل کو راہل گاندھی جی کے کہنے پر جے پی سی کو بھیجا گیا تو وہاں پر مسلم آرگنائزیشن جیسے کہ مسلم پرسنل لاء بورڈ ہے اور جمعیت العلماء ہے اور کئی ایسے مسلم آرگنائزیشنز جے پی سی سے رجوع ہوئے اور انہوں نے اس بل کو اپوز کیا، اور اپوز کرنے کے بعد مسلم پرسنل لاء بورڈ نے کہا ایک میل آئی ڈی انہوں نے تیار کی، ایک اسکینر تیار کیا، جس اسکینر کو ہمیں چاہیے کہ اسکین کر کے اگر ہم مسلم پرسنل لاء بورڈ کو میل کریں گے تو وہ کتنے کروڑس آف میل ان کو ریسیو ہوئے، وہ میلز وہ بتائیں گے کہ دیکھو اتنے کروڑس آف لوگ اس بل کو اپوز کر رہے ہیں، وہ میلز جے پی سی کو بتایا جائے گا، اور اس کے بعد وہ اعتراضات کو دیکھتے ہوئے وہ لوگ پارلیمنٹ میں اس کو بولیں گے کہ اتنے کروڑس آف لوگ اس کے خلاف ہے، لہٰذا اس بل کو روک دیا جائے، ختم کر دیا جائے۔ اس کا چھوٹا سا پروسیس ہے کہ آپ کو جو اسکرین پہ جو اسکینر دکھ رہا ہے اس اسکینر کو آپ کو اسکرین شاٹ لے کے اس کو اسکین کرنا ہے۔ اسکین کرنے کے بعد آپ کو ایک بلو لائن آئے گی، ایک میل آپ کے فون سے اوپن ہوگا، اس میں بلو لائن پہ اوپن میل بول کے آئے گا، اس کو آپ کلک کریں گے تو پھر اس کے بعد وہ پورا میٹر جو مسلم پرسنل لاء بورڈ نے تیار کیا وہ آپ کے اسکرین پہ آئے گا۔ پھر اس کے بعد آپ اس کو اگر ایک فارورڈ کا بٹن دبا دے تو وہ میل آپ کے فون سے ڈائریکٹ مسلم پرسنل لاء بورڈ کو پہنچ جائے گا۔ اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ کروڑس آف میل اگر آئیں گے تو وہ میلز کے ڈیٹیلز مسلم پرسنل لاء بورڈ جے پی سی کو یعنی جوائنٹ پارلیمنٹ کمیٹی کو بتا کر اس بل کو روکنے میں کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ پروسیس صرف اور صرف 5 سے 6 سیکنڈ کا ہے۔ اگر ہم 5 سے 6 سیکنڈ
का प्रोसेस करने के लिए हमारे पास वक्त नहीं है, तो फिर आप तैयार हो जाइए कि इस मुल्क में जो 3 लाख से ज़्यादा मसाजिदें हैं, हज़ारों खानखाएँ हैं और 10 लाख एकड़ से ज़्यादा जो वक्फ की ज़मीन है, ये सब कुछ तबाह होने से फिर कोई नहीं रोक सकता। आप इसको इतना गफलती में या इतनी आसानी से मत लीजिए और अपना 5 से 6 सेकंड का प्रोसेस करके इसको इमीडिएट फॉरवर्ड कीजिए, क्योंकि कल यानी 13 सितंबर को इसकी आखिरी तारीख़ है। कल जुमे की नमाज के बाद हर मसाजिदों में ऐलान कीजिए और मसाजिदों के बाहर वहाँ के ज़िम्मेदार नौजवान कमेटियाँ वाले एक 4-5 काउंटर लगाइए, टेबल्स लगाइए, उस पे स्कैनर की फ़ोटो रखिए और लोगों को गाइड कीजिए कि सिर्फ इसको स्कैन कीजिए और जो भी मुसल्ली नमाज के बाद बाहर निकलेंगे उनको कहिए कि आप स्कैन करके ही जाइए। तो वो लोग स्कैन करके मेल करके जाएंगे, तो इससे करोड़्स ऑफ लोगों का अगर जाएगा तो इससे बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। वरना अल्लाह ताला का भी निज़ाम है कि वो गाफिलों की मदद नहीं करता। अगर आपके पास 5 सेकंड का वक्त नहीं है तो फिर आप सूरह अर्राद की में अल्लाह ताला सूरह नंबर 13 और आयत नंबर 11 में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मैं उस कौम को नहीं बदलता जो ख़ुद अपने आप को नहीं बदलना चाहती। तो इस वजह से हमें चाहिए कि अपने आप को बदलें। हमारे टाइम में से सिर्फ एक 6 सेकंड का वक्त निकाल के इस मेल को फॉरवर्ड कीजिए। जो बाहर NRIs है, दुबई, सऊदी, अमेरिका, जहाँ पर भी हिंदुस्तानी रहते हैं, उन सब के चाहिए कि इस मेल को, स्कैनर को फॉरवर्ड कीजिए। कम से कम इस वीडियो को फॉरवर्ड कीजिए। आप करने के बाद आपके घर के जितने फ़ोन्स हैं उन सारे फ़ोनों से ये स्कैन कराइए और मेल फॉरवर्ड कीजिए। और इस चीज़ में आप इस बिल को अपोज करने के लिए मेल कर रहे हैं, मगर गफलती में मत रहिए कि जो दूसरे तबके के लोग हैं उन लोग बहुत बड़ी मुहिम चला रहे हैं इस बिल की तायीद में। वो भी एक स्कैनर तैयार किए हैं। तो अगर हम गफलती में रहेंगे तो सारी हमारी मसाजिदें, हर वो चीज़ तबाह होने से कोई नहीं रोक सकता। आगे हमें चाहिए कि इस पर गौर करें और इस पर इमीडिएट एक्शन लेते हुए अभी इस मेल को फॉरवर्ड कीजिए। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। बनी रमेश ने कहा है कि BRS को आंध्रा के लोगों के वोट और नोट चाहिए, लेकिन उनसे कोई मोहब्बत नहीं है। KCR अब ये कह रहे हैं कि नफरत भड़का रहे हैं कि 2 रियासतों को अलग करके साथ रहना चाहिए। कौशिक ने जो कहा हम उसकी सख्त मजम्मत करते हैं। कौशिक के काबिल एतराज़ तबसरों पर कार्रवाई की जाए। रेवंत रेड्डी की क़ियादत में रियासत में गवर्नेंस चल रही है तो वो इस तरह मुश्ताइल है। KCR को उन मसाइल पर जवाब देना चाहिए और माफी मांगनी चाहिए। KCR और BRS कायदीन इलाकाई इख्तिलाफात को फिर से भड़काकर सियासी फायदे की तलाश में हैं। आज कौशिक रेड्डी MLA एरिका पोडी ने ताना देकर कहा है, पिछले दिनों KCR आंध्रा गए और कहा है कि वो किसी वजीर के घर रात का खाना खाए और साथ रहे। BRS कायदीन ऐसे कौशिक रेड्डी की हिमायत क्यों कर रहे हैं? अभी BRS लीडरों की असली रंग सामने आ चुके हैं। इश्तियाल अंगेज तबसरा करने वाले कौशिक रेड्डी को मुअत्तल कर देना चाहिए। अगर BRS वाकई तेलंगाना की तरह मुत्तहिद रहना चाहती है, कांग्रेस पार्टी की लाइन को मुत्तहिद होना चाहिए। कबल अज़ीर TPCC के सदर महेश कुमार गौड़ और दीगर ने एम्स अस्पताल में सीताराम येचूरी की जिस्त खाकी की इयादत की और उन्हें खराज अक़ीदत पेश किया। MLA दानम नागेंद्र ने कहा है कि पेडी कौशिक रेड्डी अभी बच्चा है। कौशिक रेड्डी सतह है, जाने और बोले। मैं भी हैदराबाद से हूँ। एक कॉल से हम BRS लीडरों के घरों को ब्लॉक कर सकते हैं। इख्तिदार में वापस आने के वहम से बाहर आ जाएं। ఈ రాష్ట్రాన్ని దోసుకున్నారు. ఇంకెక్కడ వస్తుంది? ఈ రాష్ట్రంలో ఖజానాని మొత్తం దోసుకున్నారు. ప్రభుత్వం ఒక ఎక్స్చెక్కర్ కు గండి కొట్టారు. ఈ రాష్ట్రంలో పాలన నడిపియాలంటే ముఖ్యమంత్రి గారు వివిధ రాష్ట్రాలు ఇతర దేశాలకు వెళ్ళి ఇతర కంపెనీల ద్వారా పెట్టుబడులు తీసుకొచ్చి రాష్ట్రాన్ని నడిపించే ప్రయత్నం ముఖ్యమంత్రి గారు చేస్తూ ఉన్నారు. కాబట్టి మీరు పగటి కలలు కనకండి. మీ సాయం అయిపోయింది. మీరు ఎంత దోసుకోవాలో అంత దోసుకుని రాష్ట్ర ప్రజలకు ఎన్ని రకాలుగా భ్రష్టు పట్టించాలో భ్రష్టు పట్టించారు.
वक्फ बिल 2024 को रद्द कैसे करेंगे? अपनी मुखालिफत का इजहार करने के लिए नीचे दिए गए प्रोसेस पर अमल करें। सबसे पहले आपके पोस्टर में दिए गए QR कोड को गूगल कैमरे की मदद से स्कैन करें। स्कैन करने के बाद आपको एक लिंक मिलेगा, इस लिंक पर क्लिक करें, फिर जीमेल का मेल देखेगा और इसके पास जाकर सेंड के ऑप्शन पर क्लिक करें। बिल को पार्लियामेंट में पेश किया है, उसके खिलाफ एतराज़ात देने का वक्त 15 दिन का दिया गया है और 15 दिन की मोहलत 13 सितंबर को ख़त्म हो रही है। तो मेरी आप तमाम से गुजारिश है कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने जो QR कोड के ज़रिए हमको ये सहूलत फ़राहम की है कि हम इस प्रपोज बिल के ख़िलाफ़ अपने एहतजाज को और अपनी मुखालिफत को दर्ज करवाएं। तो उसका तरीक़ाकार ये है कि आप पहले अपना फ़ोन को लेकर उस QR कोड को देखिए और उस QR कोड को स्कैन करने के बाद आपके पास ये आएगा, एक ब्लू बटन आएगा ओपन जीमेल को आप प्रेस करिए और उसके साथ ये सब तमाम चीज़ें आ जाएंगी। इस पे आपका ईमेल अकाउंट ऑलरेडी है या डाल दीजिए, फिर उसको आप सेंड कर दीजिए जैसा मैंने अभी सेंड किया है। तो मेरी आप तमाम से गुजारिश है कि आप लोग, क्योंकि जुमे का दिन 13 तारीख़ आखिरी दिन है, तो मेरी आप तमाम से गुजारिश है कि आप इसको इस्तेमाल करें, बल्कि करोड़ों की तादाद में इस गलत क़ानून को जो हमारी वक्फ की जायदादों को छीनने के लिए नरेंद्र मोदी ने बनाया, हमारी मस्जिदों को, खानखाहों को, क़ब्रस्तानों को, हमारी ज़राअत की ज़मीन को छीनने के लिए बनाया। मेरी आप तमाम से गुजारिश है, चाहे वो मुतवल्ली हो, चाहे वो किसी ज़िम्मेदार हो कौम और मिल्लत के, आप अपना इस QR कोड के ज़रिए अपना एहतजाज और अपना रिजेक्शन इस बिल के लिए दर्ज करवाइए और मजलिस के तमाम MLAs इंशाअल्लाह जुमे के दिन अपने असम्बली हल्क़ात में जुमे की नमाज़ पढ़ेंगे और हैदराबाद के मुख्तलिफ मसाजिद के सामने ये QR कोड लगाया जाएगा और तमाम मुसल्लियान से और ख़ास तौर से मेरी माँ और बहनों से अपील है कि अपने घर में बैठकर बड़ी तादाद में मेरी माँ और बहनें इस काले क़ानून के ख़िलाफ़ इसका रिजेक्शन करें QR कोड के ज़रिए। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। हालिया शदीद बारिशों की वजह से जिला खम्मम में शदीद सैलाब आया है। इस तनाज़ुर में तेलंगाना जना समिति के सदर और कानून साज कौंसिल के रुकन प्रोफेसर कोदंडाराम ने खम्मम जिला के सैलाब से मुतासर इलाकों का दौरा किया। मुकामी लोगों से दरियाफ्त की गई है कि प्रोफेसर कोदंडाराम ने कहा है कि इस मरतबा शदीद सैलाब आया है जैसा कि पहले कभी नहीं आया था। मुकामी लोगों ने इसे समझाया है कि सैलाब की वजह से लोगों की रोजी रोटी खत्म हो गई है और कई घर मुकम्मल तौर पर तबाह हो गए हैं। कोदंडाराम ने हालिया सैलाब में मरने वालों के लवाहिकीन से अपनी गहरी हमदर्दी का इजहार किया है। उन्होंने खम्मम कस्बे के नए बाजार और बोखला गड़ा इलाके का दौरा किया और सैलाब से मुतासरा होने वाले मुकामी लोगों से मुलाकात की। दो हफ्ता कबल शदीद बारिश की वजह से भैंसा मंडल के मौजा वानल पाट के नौजवान कदम भूजाराम 28 साल मजदूर की बरक़ी शॉक लगने से मौत हो गई थी, जिस पर MLA पवार रामाराव पटेल ने मुतासरा खानदान को हुकूमत तेलंगाना की जानिब से जिला कलेक्टर डिजास्टर मैनेजमेंट कोटा के तहत मंजूरा 5 लाख रुपए का चेक हवाले किया। వాళ్లపాడు గ్రామంలో భోజరామ్ అనే పిల్లగాడు కరెంట్ షాక్తోని చనిపోయాడు. వాడికి ప్రభుత్వం ద్వారా, తెలంగాణ ప్రభుత్వం ద్వారా 5 లక్షల రూపాయలు రీఎంబర్స్మెంట్ ఇచ్చడం జరిగింది. దాని కొరకు ముఖ్యమంత్రి గారికి, మా ఇన్ఛార్జ్ మంత్రి గారికి నా తరఫున ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను. बीजेपी MLA पवार रामाराव पटेल ने भैंसा IB गेस्ट हाउस प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा है कि हाइड्रा में सियासी रहनुमाओं, मालदारों और गरीबों के साथ मसावियाना सलूक किया जाए और कहा कि हर उस शख्स अफराद को राशन कार्ड देने का मुतालबा किया जो अहल है और गणेश विसर्जन जुलूस को पुरअमन तरीके से मनाने की अपील की।
ప్రతి ఒక్కరికి రేషన్ కార్డు ఇవ్వాలి. ఎందుకంటే గరీబులకు బెనిఫిట్స్ అవుతాయి. ఈ రేషన్ కార్డ్స్ ఇచ్చిన తర్వాత కూడా ఈ రేషన్ ఇచ్చేది సెంట్రల్ గవర్నమెంటే. సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఖచ్చితంగా డిమాండ్ చేసి ప్రతి ఒక్క ఆదులకు బియ్యం ఇచ్చే. श्रीनिवास रेड्डी एमएलए महबूब नगर ने कहा है कि बीआरएस लीडरों का रवैया ऐसा है जैसे शैतानों ने वेदों को मुतासिर किया हो। रियासत में सैलाब की वजह से खम्मम, सूर्यापेट, महबूबाबाद अजला को शदीद नुकसान है। बीआरएस के कौमी सदर और कायद अपोजिशन केसीआर के ठिकाने का पता ही नहीं है। क्या वो फार्म हाउस में है, क्या वो हैदराबाद में है, असल हालत में है या नहीं, पता नहीं। केसीआर सेहतमंद है या नहीं। जब चिली को जमानत मिली तो केटीआर ने अमेरिका को तराश लिया है। जब तेलंगाना में लोग मुश्किल में थे तो केटीआर सुई के बगैर अमेरिका भाग गए थे। कलवा कुंडला खानदान का रवैया ये है कि अगर तेलंगाना के लोग किसी बहरान का शिकार होते हैं तो वो पीठ फेर कर भाग जाते हैं। आज श्रीकाकुलम शहर के न्यू APHB कॉलोनी में विनायका नवरात्रि महोत्सव के एक हिस्से के तौर पर महा अन्ना दना प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। इस प्रोग्राम में हल्के की MLA गुंडू शंकर ने शिरकत की और अकीदतमंदों को अन्ना प्रसाद की खिदमत की। ఈరోజు హౌసింగ్ బోర్డు కాలనీ దండవీధి 31వ డివిజన్ సూర్యబాబు గారు ఇన్ఛార్జ్ గారు ఆయన ఏరియాలో కనీస నవరాత్రుల మహోత్సవం సందర్భంగా అన్నదానం కార్యక్రమాన్ని ఇక్కడ ఏర్పాటు చేశారు కమిటీ వారు. అన్ని దానాల కన్నా అన్నదానం నిన్న అనేది మన నానుడి అన్నదానం మహాదానం మంచి ఇది సాంప్రదాయం. ఈ సందర్భం వారందరికీ నేను అభినందనలు తెలియజేసుకుంటున్నాను. नामबल्ली हल्का AIMIM पार्टी विजयनगर कॉलोनी कॉर्पोरेटर डॉक्टर कासिम मेहदीपट्टनम की अजीजिया मस्जिद में नमाज पढ़ रहे हैं। डॉक्टर कासिम ने अजीजिया मस्जिद का दौरा किया और नमाज अदा की। हर किसी से QR कोड स्कैन करने और वक्फ तरमीमी बिल 2024 की मुखालिफत करने पर जोर दिया। अपनी आवाज सुनाने का आज आखिरी दिन है, फर्क करने का ये मौका जाया न करे। बाद नमाज जुमा जामे मस्जिद दारुल शिफा से पंजे शाह तक हजरत अमीर मिल्लत इस्लामिया मौलाना मोहम्मद हुसामुद्दीन सानी आकिल जाफर पाशा ने पैदल रैली निकाली और अवाम को वक्फ तरमीमी बिल के सिलसिले में शौर बेदारी करते हुए वक्फ की अहमियत बताई। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जामे मस्जिद दारुल शिफा से हम पंजे शाह तक QR जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने तरमीम बिल के तहत जारी किया है, इस सिलसिले में लोगों को इस बात की तरफ तरगीब देने के लिए हमने एक दौरा किया और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत से लोगों ने इस QR कोड पे अपना एहतजाज दर्ज करवाया है। मैं हमारे तमाम सामाईन से, नाज़रीन से गुजारिश करूँगा कि आज आखिरी दिन है, आज आप कंप्लीट करे बगैर अपने तमाम घर वालों के फ़ोन से इस मैसेज को रवाना करें ताकि आपके इस मैसेज के ज़रिए अल्लाह हमारे वफ़ की हिफाजत कर सके। अस्सलाम वालेकुम। MP रवि ने अपनी टीम के साथ केरला रियासत के एरानाड हल्के में दरिया चिलिया का दौरा किया, जहां वयानाड लैंडस्लाइडिंग के मुतासरीन नीचे बह गए थे। ये दौरा मरने वालों की ताज़ीम के लिए एक अहम मौका था और मुसलसल मदद और बहाली की जरूरत पर रोशनी डाली। इसी के साथ खबरनामा इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफ़िज़।